Good morning, students. Students, today will start chapter Seeds and Seeds. In this chapter, I'll tell you different facts related to seeds. First of all, I want to share an incident with you. Some days ago, I watched a video on chickpea recipes. Chickpea means Kabuli chana or white chana, or it is also called chola. So I thought about making some chickpea dish. To make that dish, I took some chickpeas and I soaked those chickpeas in water. And after some time, I observed that the size of the chickpeas has increased. And I didn't need that much chickpeas for my chickpea dish. So I used half of them, and my friend suggested me that leave half of the chickpeas to sprout. And he also told me that sprouts are good for our health. So I did as he told me to do. So after one day I got my sprouts. आप लोगों ने भी घर में स्प्राउट्स के लिए कोई दाल या चिकपीस या कुछ और रखा हुआ देखा होगा या बीन्स रखे हुए देखे होंगे, जिनमें 1 या 2 दिन के बाद जब उन्हें हम पानी में रखते हैं या उन्हें हम किसी डैम्प क्लोथ में बंद करके रखते हैं तो उनमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। आपके घर में भी बोलते होंगे या आपने डॉक्टर या किसी को बोलते हुए सुना होगा कि स्प्राउट्स खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इससे हमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे दिमाग में और भी एक्सपेरिमेंट्स आए। So I again did some experiments with chickpeas. I put chickpeas in 3 bowls. In one bowl, I just put chickpeas and nothing else. And in second bowl, I put wet cotton with chickpeas. And in third bowl, I put chickpeas in water. And chickpeas were completely inside water. मैंने क्या किया, 3 बाउल लिए। फर्स्ट में सिर्फ चिकपीस डाले और उसके साथ में कुछ भी नहीं, और सेकंड वाले में एक कॉटन, वेट कॉटन डाला, गीला कॉटन, और उसके साथ में चिकपीस रख दिए और उसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया। और एक तीसरे बाउल में मैंने क्या किया, उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया और उसमें चिकपीस डाल दिए और वो चिकपीस पूरी तरह से पानी में डूब गए। And after 2 days, I observed those bowls, and there was no change in the first bowl, and the chickpeas in the second bowl sprouted, and in third bowl, size of the chickpeas increased, but the chickpeas didn't sprout. तो मैंने जब 2 दिन के बाद देखा तो मैंने क्या देखा कि जो फर्स्ट बाउल है उसमें चिकपीस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, और जो सेकंड वाला था जिसमें मैंने वेट कॉटन रखा हुआ था साथ में, उसमें उनमें स्प्राउट्स आ गए, और जो थर्ड वाला था उसमें साइज में थोड़ा इंक्रीज हुआ लेकिन उसमें स्प्राउट्स नहीं आए। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिडंट चिकपीस इन थर्ड बाउल स्प्राउट? आपको क्या लगता है कि जो थर्ड बाउल था उसमें स्प्राउट्स क्यों नहीं आए? To get the answer of this question, you need to understand the requirements for sprouting or germination. Sprout को हम germinate होना भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। To sprout or to germinate, a seed needs water, air and suitable temperature and sometimes light also. तो स्प्राउट होने के लिए एक सीड को क्या चाहिए होता है, वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर, और कभी कभी किसी स्पेशल केस में प्रॉपर लाइट भी चाहिए होती है। सो इन फर्स्ट बाउल चिकपीस गॉट ओनली एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर and they didn't get water, that is why chickpeas didn't sprout. In second bowl,
we put chickpeas with wet cotton. So chickpeas got air, water and suitable temperature. So chickpeas got all favorable conditions. That's why chickpeas sprouted. And in third bowl, we put chickpeas in water and chickpeas were completely inside water. So chickpeas got water, suitable temperature, but they didn't get air. That's why chickpeas didn't sprout because they didn't get enough air. So a seed needs air, water, suitable temperature and light in some cases to sprout or to germinate. After these experiments, I did one more experiment. I put masoor dal or red lentil in water and wet cotton, but masoor dal didn't sprout. Do you know why? ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया. मैंने मसूर दाल, जिसको हम रेड लेंटिल भी कहते हैं, उसको वेट कॉटन और पानी में रखा. लेकिन जब मैंने 2 दिन बाद चेक किया उसमें स्प्राउट्स नहीं आए. ऐसा क्यों हुआ होगा? टू गेट द आंसर you need to understand the different parts of a seed. A seed has 3 parts: embryo, endosperm and seed coat. These are the 3 parts of a seed. It is the inside view of a seed. It is embryo, or it is also called a baby plant, and this is food storage. It is also called endosperm, and this is the outer layer of the seed. It is called seed coat. तो ये जो यहाँ पे है ये क्या है? एम्ब्रियो है, जिसे बेबी प्लांट भी कहते हैं. और ये जो बाकी एरिया है क्या है? फूड स्टोरेज, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं. और ये जो बाहर की लेयर है ये क्या है? सीड कोट. तो अब हम इन सबके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं. एम्ब्रियो मीन्स अ बेबी प्लांट which is inside seed. When we plant a seed, then that baby plant comes out of the seed and becomes a big plant or a tree. And when a seed begins to grow, one part of the embryo becomes plant while the other part of the embryo becomes the root of the plant. तो जब एक सीड से बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है तो जो एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है वो प्लांट बनता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो रूट बनता है. एंड कोटिलीडन इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. इट बिकम्स फर्स्ट लीफ. कोटिलीडन एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जो फर्स्ट लीफ बनता है. जो लीफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन. तो सीड्स 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट. मोनोकॉट मीन्स सीड्स which have only one cotyledon and dicot seeds means which have 2 cotyledons, and we can recognize them. Monocot seeds have only one leaf when they come out of the soil, and dicot seeds have 2 leaves. The second part of the seed is endosperm. It is the food source. It provides food or nutrients to the baby plant until it germinates and reaches sunlight. तो जब तक बेबी प्लांट बड़ा नहीं हो जाता, खुद से फूड नहीं बनाने लग जाता है सनलाइट में, तब तक वो अपना फूड एंडोस्पर्म से लेता है. एंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है. तो जब तक बेबी प्लांट सॉइल से बाहर आके खुद का फूड खुद से नहीं बनाने लगता, तब तक वो फूड एंडोस्पर्म से लेता है. एंड द थर्ड पार्ट इज सीड कोट. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीड. तो जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या है? सीड कोट है. जो सीड के अंदर के पार्ट्स हैं, जैसे एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, कोटिलीडन है, उन सबको वो सीड कोट प्रोटेक्ट करता है, उनको हार्म नहीं होने देता है बाहर से. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ सीड: एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट. सो सीड्स रिक्वायर ऑल दीज पार्ट्स फॉर स्प्राउटिंग. When any of them is missing, then they can sprout or germinate. Red lentils or masoor dal is made by splitting brown lentils or whole lentils.
So because of splitting, their cotyledon also got splitted and seed coat is removed during this process. So the embryo and other parts of red lentils got destroyed during this process of splitting. That's why red lentil or masoor dal doesn't sprout even if we provide all the favorable conditions. क्या होता है, जो रेड लेंटिल होता है वो ब्राउन लेंटिल को स्प्लिट करके बनाया जाता है। तो स्प्लिट करने की वजह से उसका जो कोटिलिडन या जो एम्ब्रियो है वो भी स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जब हम उसको फेवरेबल कंडीशंस जो भी चाहिए स्प्राउट होने के लिए एक सीड को सारी भी प्रोवाइड करवाएंगे, तब भी रेड लेंटिल स्प्राउट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो अंदर पार्ट्स थे जो स्प्राउट होने के लिए चाहिए थे वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो सीड्स नीड इट्स ऑल पार्ट्स फॉर स्प्राउटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।